So today is Sri Varaha Dvadashi. This is a very special time, a special period usually because yesterday was Ekadashi. Anybody knows what is the name of yesterday's Ekadashi? कल के एकादशी का नाम क्या था? जय एकादशी. एक और नाम है भाईमी. भाईमी एकादशी. Both have the same meaning. अर्थ एक ही है. जया means victory और भाईमी means victory. जय जय हो. Okay. और एकादशी के बाद जो द्वादशी आता है वो वराहदेव का द्वादशी है. सो वराहदेव appeared on this particular day. Which year we don't know because this was before time. This was before time. Before time in the sense long long ago. और कल है नित्यानंद त्रयोदशी. Somebody is excited about the festival. So, anyway, we are speaking about Nityananda Prabhu, pastimes of Nityananda Prabhu. लेकिन उससे पहले few words we will speak about Varahadev. Huh? Otherwise, Varahadev will get angry. It's his appearance day and we're not talking about him. So, few words about Varahadev. Since we have spoken about Varahadev last year, so few words we will share now about Varahadev so that we get his blessings. So, वराहदेव दो बार प्रकट हुए. उनके दो अवतार हैं. वराहदेव के दो अवतार हैं. Anybody knows which are the two forms of Varahadev? श्वेत वराह और रक्त वराह. और रक्त वराह को हमारे शास्त्रों में नील वराह भी कहते हैं. कभी कभी किन्हीं शास्त्रों में नील वराह भी कहते हैं, लेकिन जनरली रक्त वराह और श्वेत वराह. So Varahadev is very important for devotees, and today is a very auspicious day because of Varahadev. We've opened our what is that banner today. Yeah, so Varahadev is the owner of हमारे इंडिया में कुछ कम्युनिटीज है ना जो कहते हैं कि ये लैंड हमारा है अकॉर्डिंग टू लॉ, वो लैंड हमारा है. हमने एक बार जो बोल दिया लैंड हमारा है तो हमारे ही है ना. तो वी हैव टू टेल देम कि वराहदेव इज द ओनर ऑफ द एंटायर प्लैनेट, होल यूनिवर्स, बट भूमि देवी is the wife of Varahadev, right? So if somebody tells you like that, very politely tell them that Bhumi Devi, the whole Bhumi is ours, right? Because she is our mother. So that is how it is supposed to be. So Varahadev, uh, first time when Varahadev appeared, he came in the beginning of the universe. जब क्रिएशन हो रहा था उस टाइम पे भूमि देवी अपने ऑर्बिट से गिर गई. शी हैड मूव्ड अवे फ्रॉम हर ऑर्बिट एंड पानी के अंदर. और जब मैं थोड़ा छोटा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, भूमि पानी के अंदर कैसे गिर सकता है, पानी तो भूमि के ऊपर होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है ना? तो मैं ऐसे ही सोच रहा था. लेकिन ये पानी अलग है, ये समंदर अलग है, ये गर्भोदाक्षायी समंदर है. दिस इज द गर्भोदाक्षायी ओशन. और भूमि देवी उसके अंदर गर्भोदाक्षायी समुद्र के अंदर गिर जाती है. तो उस समय के जो मनु हैं, अ, मनु इसको रिकग्नाइज करते हैं और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि ऐसे भूमि देवी जल के अंदर गिर गई है. और उस समय आते हैं हमारे वराहदेव. और वराहदेव आते हैं गर्भोदकशाही, सॉरी, गर्भोदक समुन्द्र के अंदर जाते हैं और भूमि देवी को बाहर निकाल के ले आते हैं. ठीक है. और ये होता है पहली बार. और ये है श्वेत वराह. तो श्वेत क्यों कहते हैं वराहदेव को? श्वेत वराह मतलब white, right? White form of Varahadev. Now the second one is later on when a very powerful demon
दो असुर थे और इन दो असुरों को कहते हैं आदि दैत्य. आदि दैत्य मीन्स they are the first demons in the entire universe. And who are these two demons? Very famous celebrities. One is Hiranyaksha, and the other is his brother Hiranyakashipu. Okay, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इस यूनिवर्स के पहले दैत्य, आदि दैत्य. ओके, नाउ अभी इनके पेरेंट्स कौन थे, कोई जानते हैं? दिति और कश्यप. Right. So they were conceived at the wrong time. Conceived at the wrong time means during the twilight, evening. जब सनसेट होता है, संध्या टाइम है, उस टाइम पे अगर conceive if a male and a female have a relationship intercourse at that particular time, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको वर्ण संकर कहते हैं. वर्ण संकर मतलब they are usually demoniac by nature and they become atheists, right? And Kashyapa was forced by Diti at that particular time because she was very jealous of her sisters, or her sister was Aditi. Aditi के बच्चों को क्या कहते हैं? आदित्यास. आदित्य जैसे सूर्यदेव विवस्वान आदित्य है, अग्नि आदित्य है. तो अदिति के बच्चे ये सारे देवता हैं और दिति के बच्चे दैत्य हैं. ठीक है, दैत्य, दैत्यस एंड आदित्यस. और कश्यप मुनि ने बोला दिति को दैट इन योर वूम यू आर गोइंग टू हैव टू डीमंस, ट्विंस, दोनों असुर. शी फेल्ट वेरी बैड कि अभी क्या होगा, नो मेरे वूम में भी दो ट्विंस हैं और दोनों असुर हैं. एंड शी फेल्ट एक्सट्रीमली बैड अबाउट इट. बट देन Kashyap Muni also blessed her. Okay, your sons are going to be demons, but your grandson will be a great devotee. और grandson कौन है? प्रहलाद महाराज. भयंकर devotee. Yeah? So प्रहलाद महाराज. So that is Prahlad Maharaj. So then she was happy, but she kept um, Hiranyaksha and Hiranyakashipu in her womb for how long? 100 years. 100 years. Right? So any newly married Matajis, don't try it at home. It's not possible. So it won't be possible for us because their bodies were different. उनके शरीर एकदम अलग है and उनकी capacity अलग है. So she kept it for 100 years. Even for her, it was very difficult, but she tried because she did not want these asuras to come out. But then, how long will she hold on? So after 100 years, दोनों प्यारे प्यारे बच्चे आ गए बाहर. हाँ, हाँ. और हाँ ब्रो, हाँ, बन के बाहर आ गए बड़े बच्चे. तो ये बच्चे आ गए बाहर और जैसे बड़े हुए बहुत शक्तिशाली, और उनके जैसे शक्तिशाली यूनिवर्स में और कोई नहीं था. इनफैक्ट इंक्लूडिंग देवतास, there was nobody as powerful as these two asuras. One is हिरण्यकशिपु, one is हिरण्याक्ष. दोनों में से बड़े कौन? ट्विंस हैं, लेकिन उनमें भी एक बड़ा छोटा होता है. तो हिरण्याक्ष, पहले आए हिरण्याक्ष, बाद में आए हिरण्यकशिपु, और बड़े कौन अभी? नहीं, हिरण्यकशिपु. ठीक है. वैदिक एम्ब्रियोलॉजी. हाँ, हमारे नॉर्मली क्या होता है, जब ट्विंस होते हैं तो जब पहला बच्चा बाहर आता है ना, तो उसको हम बड़ा बच्चा कहते हैं. एक्चुअली उल्टा होता है. वैदिक एम्ब्रियोलॉजी में जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल. जैसे ये लिफ्ट है, ठीक है. पर्सन ए एंटर्स द लिफ्ट, देन पर्सन बी आल्सो एंटर्स द लिफ्ट. लिफ्ट के अंदर पहले कौन गया, ए या बी? ए. बाद में गया बी. बाहर आने के टाइम कौन पहले आएगा? बी आएगा. उसके बाद आएगा ए, है ना? हाँ, तो बड़े हैं हिरण्यकशिपु क्योंकि वो बाद में आए. ठीक है. पहले जो बच्चा आता है वो छोटा होता है. हाँ, ठीक है, ऐसे. तो इवन दो हिरण्याक्ष बाद पहले आए, लेकिन वो छोटे हैं. ठीक है. हाँ, तो ये होता है वैदिक एम्ब्रियोलॉजी. हमारे मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी में वो उल्टा है, क्योंकि वो नॉर्मली कहते हैं कि बड़ा बच्चा आ गया तो पहला बच्चा आ गया तो वो बड़ा. तो ऐसे नहीं होता है. सो दिस इज आवर
वैदिक साइंस। तो एनीवे, जब ये बच्चे आए तो अ, बड़ा वाला हिरण्यकशिपु जंगल में गया तपस करने के लिए, और तपस्या की, और ब्रह्मा जी को प्लीज करने के लिए। और हिरण्याक्ष भ्रमण करने लगे सारे यूनिवर्स में, बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो सभी को चैलेंज करने लगे कि आई नो एनीबडी, माय हैंड्स आर इचिंग, एनीबडी स्ट्रांग इनफ टू कम एंड डिफीट मी, सो पावरफुल। बट ऐसा कोई नहीं था, नोबडी वाज देयर टू डिफीट हिरण्याक्ष। और किसी ने कहा कि वरुण देव बहुत शक्तिशाली है, तो वरुण देव को जाके आप चैलेंज कीजिए। तो वो गए इसके अंदर, ओशन के अंदर, समुद्र के अंदर, और वहां पे वरुण देव। तो जैसे हमारे जैसे पूरे कंट्री में प्राइम मिनिस्टर तो हर जगह नहीं रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो एक जगह रहते हैं, दिल्ली में। वैसे ही वरुण देव पूरे समुद्र में नहीं रहते, उनकी उनका भी एक राज्य होता है, तो उनका राज्य का नाम होता है विभावरी। तो हाँ, विभावरी। तो विभावरी, तो विभावरी समुद्र के अंदर एक सिटी है, वहां पे गए और वरुण देव से मिले, और उनको चैलेंज किया कि लेट्स गेट इनटू अ फाइट। और वरुण देव ने वेरी इंटेलिजेंटली बोला कि सॉरी यार, बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अभी, बैक पेन है, लेग पेन है, अभी नहीं हो सकता। तो अभी रहने दो। तो उन्होंने बोला नहीं, आई हर्ड यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, आपके जैसा शक्तिशाली और कोई नहीं है देवताओं में, तो आई एम चैलेंजिंग यू, फिट। तो वरुण देव, नो नो प्लीज प्लीज, नो एक्सक्यूज मी। लेकिन एक और है, भगवान विष्णु, उनको चैलेंज कीजिए, एंड ही विल गिव यू अ गुड फाइट। तो he said, अच्छा भगवान विष्णु सुना है मैंने। देन ही गोज, ही ट्राइज टू फाइंड भगवान विष्णु, लेकिन भगवान विष्णु तो ऐसे मिलते नहीं है। फिर उन्होंने पूछा विष्णु कहाँ पे मिलेंगे? विष्णु मिलेंगे, उनके भक्त को ही मालूम है उनका एड्रेस कहाँ पे है। तो उनके फेमस भक्त कौन है? नारद मुनि, तो हर जगह रहते हैं। तो नारद मुनि को कहीं से उन्होंने पकड़ा और बोला, पूछा कि ये नारायण कहाँ है, आपके नारायण? अम, और उन्होंने बोला कि नारायण गर्भोदक समुंदर के अंदर होंगे। और ढूंढने लगे, और भगवान नहीं मिले उसके अंदर भी। और अ, हिरण्याक्ष ने सुना था कि पहली बार जब भगवान आए थे, वो तब आए थे जब भूमि देवी गर्भोदक के अंदर गए थे, गिर गए। तो इस बार में उसने सोचा कि आई एम गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग, और आई विल क्रिएट द सेम सिचुएशन, और फिर से भगवान आएंगे, मतलब विष्णु आएंगे। तो ही वेंट एंड ही टॉपल्ड भूमि देवी। ही वाज सो पावरफुल, भूमि देवी को अपने ऑर्बिट से गिरा दिया, और भूमि देवी गए गर्भोदक समुद्र के अंदर, एंड वेंट स्ट्रेट डाउन इनटू द मग, कीचड़ के अंदर। फिर ब्रह्मा जी डर गए, सभी डर गए। ब्रह्मा जी यूजुअली डरते नहीं है, क्योंकि बड़े से बड़े असुर देखे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी तो नहीं डरते। पहली बार इवन ब्रह्मा गॉट वेरी नर्वस। और इस नर्वसनेस में, जैसे हमें कोल्ड कॉफ होता है ना, ब्रह्मा जी को तो कोल्ड कॉफ नहीं होता है, फिर भी शायद यूनिवर्स का सबसे पहला चीख या स्नीज ब्रह्मा जी ने किया। अच्छा, ठीक है। और जब स्नीज किया, तो उनके नाक से, हमारे नाक से तो कुछ अच्छी चीजें नहीं निकलती, लेकिन ब्रह्मा जी के नाक से वराह देव निकले। ओके। तो इसके पीछे भी एक रीजन है, एक कारण है। तो कारण ये है कि कहते हैं इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, जब भगवान अम, सारे वैदिक लिटरेचर्स को जब ब्रह्मा जी को देते हैं, तो अपने अपने जो ब्रेथ है, श्वास है, श्वास को ब्रह्मा जी के श्वास में ट्रांसफर करते हैं, एंड द होल वैदिक लिटरेचर्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू हिज ब्रेथ। ओके, सो द ब्रेथ ऑफ ब्रह्मा जी आर द वैदिक लिटरेचर्स। और जब ब्रह्मा जी स्नीज करते हैं, उनका ब्रेथ जब निकलता है, द सेम वैदिक लिटरेचर्स कम इन द फॉर्म ऑफ वराहदेव। सो वराहदेव और हमारे वेदों में कोई अंतर नहीं है। वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद्यः। So Krishna tells in the Bhagavad Gita that I am the Vedas, I am the purpose of the Vedas also. So that Krishna, that Mahavishnu, he comes as Varahadev. What is the meaning of the word Varaha? Varaha का मतलब क्या है? वराह, हाँ,
जब हम शब्दकोश जब चेक करते हैं ना, संस्कृत का शब्दकोश, अगर आप चेक करेंगे शब्दकोश, उसमें वराह अगर चेक चेक करेंगे, तो वराह का मीनिंग होता है बोर या पिग, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द मीनिंग, द डिक्शनरी इज ऑल्सो रॉन्ग. Okay, so the meaning of Varaha should be found from our Purva Acharyas. So our Purva Acharyas explain कि वराह का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा, द अ जायंट, वेरी टॉल. जैसे बड़ा कोई बिल्डिंग होता है ना, तो उसको वराह कहते हैं संस्कृत में. वो होता है ओरिजिनल मीनिंग. क्योंकि वो उस रूप में आए, शुक्र रूप में आए, तो बाद में लोग कहने लगे वराह का मीनिंग होता है बोर या पिग, और शब्दकोश में भी यही लिखा है अभी हमारे संस्कृत डिक्शनरी में. तो व्हेन यू वांट टू लर्न वैदिक लिटरेचर्स, वी शुड नॉट लर्न इट फ्रॉम अ संस्कृत स्कॉलर, वी शुड लर्न इट फ्रॉम आचार्यस. दैट इज द प्रोसेस. एनीवे, सो वराहदेव आए, और uh, उनको देख के all the devatas they started glorifying, and all the Vedic mantras were chanted. फिर हिरण्याक्ष बहुत खुश हो गए वरादेव को देख के कि ready, ready for a fight. आ जाओ. He was like that. और Varadev just ignored him like he was a stray dog. Just ignored him, and he said, "Sorry, boss, I have to go take care of my wife. Wife is under the ocean." So he jumped inside the ocean and अपने पत्नी जी को ऊपर लाने के लिए गए. और ये हिरण्याक्ष चुप नहीं बैठ सकता. He started giving all kinds of abuses. He said, "I am dirty animal, this, that." बहुत सारी चीजें कहे वरादेव को, और वरादेव को गुस्सा आ गया. और वरादेव ने भूमि देवी को बोला, "होल्ड ऑन, I'll be back." जैसे हीरोज हीरोज कहते हैं ना, ओरिजिनल हीरो, राइट. इनफैक्ट इज द ओनली हीरो, सुपर हीरो. तो वराहदेव ने कहा कि आई बी बैक. भूमि देवी ने बोला ठीक है, ओके, आई वेट फॉर यू. फिर वराहदेव बाहर आए, और फाइन. और वॉर इतना घमासान हुआ इन दोनों के बीच में, दैट एवरीबडी वाज स्कैर्ड, एवरीबडी वाज स्कैर्ड. और सारे देवता भी इतने नर्वस हो गए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ. क्योंकि ऐसा है कि जब इस समय, या फिर स्टॉप बाय अराउंड 6 o'clock, यूजुअली बाय सनसेट. सनसेट के टाइम पे क्या होता है, ऑल द दैत्यास और गोस्ट्स, देयर स्ट्रेंथ इज लेस ड्यूरिंग द डे. और जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद उनकी शक्तियां और 10 times 20 times ज्यादा हो जाती है. दे बिकम मोर पावरफुल. सो ब्रह्मा जी न्यू कि अभी सनसेट होने वाला है, एंड ये हिरण्याक्ष, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल फाइट हो रहा है उन दोनों के बीच में. और अगर सनसेट हो गया, तो ये तो और भी बलशाली हो जाएगा. एंड ही बिकेम वेरी नर्वस कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ. एंड ब्रह्मा जी स्टार्टेड स्वेटिंग. And in his mind, he started praying to Varahadev, "Varahadev, please stop playing with him and kill him. Please kill him immediately. Because the sun is going to set." And apne man mein he started praying to Varahadev. And Varahadev, between his fight, he's looking at Brahma and he's smiling. And Brahmadev is telling, "Please don't play. Just kill him right now. Sunset, sunset." And Varahadev told him in his mind, "I'm waiting for the sunset. Let the sun set, and I want Hiranyaksha to be in his complete prowess, in full strength, because I want to defeat him then." क्योंकि if that is not done, क्या होगा कि हिस्ट्री में बाद में लोग कहेंगे कि कमजोर, हाँ, उस टाइम पे वराहदेव ने मार दिया, लेकिन अगर थोड़ा देर अगर वराहदेव रुक जाते सनसेट के बाद में, तो शायद हिरण्याक्ष जीत जाते. तो अभी भी कलयुग में रावण के भी बहुत सारे डिवोटीज हैं जो कहते हैं कि रावण इतने ग्रेट डिवोटी हैं, महादेव कितने अच्छे डिवोटी हैं, है ना. तो देयर मेनी पीपल हु ग्लोरीफाई रावण आल्सो एट दिस टाइम. तो हिरण्याक्ष के भी बहुत सारे डिवोटीज बन जाते हैं इस टाइम पे. तो वराहदेव सेड, "I don't want to leave any doubts in the minds of my devotees. So let the sun set." तो he was playing with him till sunset. So sunset हो गया. उसके बाद हिरण्याक्ष became extremely powerful. After he became powerful, one punch, bas, one punch, or Hiranyaksha dead. He was finished. So in this way, Hiranyaksha was finished, and
the Lord bought, he went down and very carefully he picked up Bhumi Devi on his tusk, on his two Yes, yes. tusks. So he carried Bhumi Devi and he brought her up. And he brought her up, and just like an amazing hero, he kept his leg on the chest of Hiranyaksha to show his beautiful wife, this guy did it to you. Look what I did to him. And his wife clapped, very happy, right? So हमारे original hero है Varahadev. So this is Varahadev, and he is Bhumipati. Um, anyway, this pastime continues in this particular way that Varahadev and Bhumi, during this incident, they also have a child. उनका एक पुत्र होता है. पुत्र का नाम है Bhauma. ठीक है? Bhauma. And Bhauma was a great devotee. Not a he was a very pious person. और उनका जन्म हुआ था सारी देवताओं की रक्षा करने के लिए. और वराहदेव के पुत्र हैं, तो बहुत ही बलशाली भी हैं, है ना? तो बट लेटर ऑन, मेनी मेनी युगास लेटर, उनकी ये एसोसिएशन, मित्रता हो गई एक बानासुर के साथ, एक असुर के साथ. और उनकी मित्रता की वजह से ये भौमा भी एक असुर बन गए. इसलिए उनका नाम है भौमासुर. भौमासुर. बाद में उनको नरकासुर भी कहते हैं. दिवाली के टाइम पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एक दिन, नरक चतुर्दशी, है ना? सो नरक चतुर्दशी. तो भगवान आए, कृष्ण आए द्वापर युग में, वही वराहदेव कृष्ण बन के आए. फिर इस टाइम पे भूमि देवी ने कृष्ण से पूछा कि हम, ही इज माई सन, Bhaumasur is my son. You have to promise me, don't kill him. And Krishna did not promise anything. He just he just didn't promise. He just raised his shoulder and said, "I don't know. We'll think about it." So she said, "I trust you. I know you will not kill him." So later on, that is why उस समय उस युद्ध में गए कृष्ण और सत्यभामा. सत्यभामा को क्यों लेके गए? क्योंकि सत्यभामा is the origin of Bhumi Devi. Okay, she is the origin. And उनकी शक्ति है भूमि देवी. So he went with Satyabhama because if she approves, then it is like Bhumi Devi approving, right? It is like that. So they went in that way, and he killed Narakasur, and Narakasur had kidnapped 16,100 princesses, all the daughters of all the kings, just to insult them. उन्हें insult करने के लिए he started kidnapping all their daughters and he had put them in jails. So Krishna went and released them. और उस समय की सोसाइटल नॉर्म्स ऐसी थी कि अगर कोई स्त्री एक रात भी कहीं और रहे घर से बाहर, nobody will marry her. So these were there for a very long time. So they said we are rejects in the society. हमें तो कोई विवाह नहीं करेगा. We have no chance to live. We have no place to go. So Krishna said, go to Dwarka. And if nobody is accepting you, then Dwarka, the city of Dwarka is always there. So you can go there. But they said, what are we going to do in Dwarka also? We'll be there, but what are we going to do? Uh, and then looking at the form of Krishna, and looking at Krishna holding the bow, he looked like Lord Ramachandra at that time. So beautiful, so beautiful. So at that time, they all in their hearts accepted Krishna as their husband. And Krishna knew that they will never get married to anybody else. They have no chance. So Krishna married 16,100 um, princesses. And all of them married at the same time, same day. There were 16,100 mantapas, all of and Vivah happened at the same time, all 16,100. Now Krishna wants his family also to be everywhere. So his entire family also was there in 16,100. He expanded them also. Nobody else can do that, isn't it? There's nobody in this universe who can do that. Only Krishna was able to do that. So this is Krishna. So this is how the continuation of Varahadev happens. Anyway, so this Hiranyaksha and Hiranyakashipu, they continue in various three different forms. And in this particular form, they come when Krishna was there, they came as Shishupala and Dantavakra. Now they will come again, fourth time, bonus. And this fourth time is in Kali Yuga.
Okay. And we will talk about that. So the same Krishna Balaram, uh, Krishna and his brother Balaram, they took birth 500 years ago in Navadvip, Mayapur. And Krishna appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. And Balaram अवतरित हुए नित्यानंद प्रभु के नाम से। ठीक है, सो नित्यानंद प्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु। और इन दोनों में से महाप्रभु कौन है और नित्यानंद प्रभु कौन है? येलो इज चैतन्य महाप्रभु and blue color is Nityananda Prabhu. This is also the colors that they used in their as Krishna Balaram also. Krishna also, his favorite color is yellow, and Baladev or Dauji, his favorite color is blue. लेकिन इस बार they were born of different mothers. Okay. And Chaitanya Mahaprabhu was younger. चैतन्य महाप्रभु छोटे थे और नित्यानंद प्रभु बड़े थे, 12 साल बड़े, 12 years elder. और नित्यानंद प्रभु उन, उनका जन्म हुआ था एक चक्र धाम में। ओके, मायापुर, वेस्ट बंगाल, उस साइड में एक चक्र एक धाम है। और द्वापर युग में इस एक चक्र धाम में ये जब पांडव वहां पे गए थे और भीमसेन ने एक असुर का वध किया था, बकासुर, बकासुर का वध किया था, ये वही स्थल है। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने जन्म लिया। उनके पिताजी का नाम था हडाई पंडित, वेरी वेरी हम्बल सिंपल ब्राह्मण, एंड हिज मदर्स नेम पद्मावती, पद्मावती और हडाई पंडित। और जब नित्यानंद प्रभु इज द फेवरेट ऑफ हडाई पंडित एंड पद्मावती, बहुत बहुत प्यार करते थे। इनफैक्ट he could never really stay away from Nityananda Prabhu. He would never stay away from him. He was always thinking of Nitai all the time. जब भी देखो निताय निताय निताय, he was only thinking. इतने अटैच थे अपने पुत्र से, नित्यानंद प्रभु से, कि कहते हैं कि जब हडाई पंडित कुछ काम के लिए बाहर जाते अपने घर से, तो बार बार पीछे मुड़ के देखते कि मेरा पुत्र कहीं घर से बाहर तो नहीं जा रहा, घर पे ही रहे। क्योंकि अगर बाहर चला गया, अगर किसी ने उसको किडनैप कर लिया, कहीं लेके चले गए, सो ही वाज ऑलवेज थिंकिंग ऑफ नित्यानंद प्रभु। सो ही वाज सो अटैच्ड टू हिम। और नित्यानंद प्रभु हमेशा हमारे उनके मित्रों के साथ खेलते, और जब खेलते सिर्फ जो रामायण के पास टाइम्स थे उसको मतलब उसका जो ड्रामा था, स्किट था, वो सब करते। एंड एवरी टाइम नित्यानंद प्रभु यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ लक्ष्मण, because he was Lakshman, right? So the same Lakshmana बलराम जी बने और बलराम जी नित्यानंद प्रभु बने। ठीक है, ऐसे। तो he would always play the role of लक्ष्मण। लेकिन जैसे वो बड़े हुए और 12 साल के हो गए, एक एक सन्यासी आए उनके घर पे और कुछ दिन उनके घर पे रहे। और जब वो वहां से जाने का समय हो गया, तो सन्यासी ने नित्यानंद प्रभु के पिताजी हडाई पंडित से पूछा कि आई वॉन्ट अ गिफ्ट फ्रॉम यू। एंड उन्होंने बोला, पूछे आपको क्या चाहिए, आई आई एम पुअर ब्राह्मण, लेकिन अगर आपको मेरी यू वांट माय लाइफ आल्सो, प्राण भी चाहिए, तो आई विल गिव इट टू यू। फिर उस सन्यासी ने बोला कि मैं अभी एक यात्रा पे जा रहा हूँ और पूरे भारत का भ्रमण करने वाला हूँ, और मुझे एक डिसाइपल चाहिए, मुझे आपका पुत्र चाहिए। तो हडाई पंडित ही कुडंट मैनेज कि और आचार्य कहते हैं कि ये सिचुएशन बिल्कुल वैसे है जैसे रामायण में जब विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज से भगवान राम को मांगा था कि राम को मेरे साथ भेजो, वहां पे असुर है, असुर का वध करना है, तो राम को मेरे साथ भेजो। तो दशरथ भी उस समय इतने टूट गए थे कि
आई विल कम इफ यू वांट मी टू कम, मैं आ जाता हूँ। राम तो अभी बहुत छोटे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही हडाई पंडित ने बोला कि मैं आ जाता हूँ आपके साथ। और ये तो बहुत छोटा है, मैं आ जाता हूँ आपके साथ, मैं सेवा करूंगा। ही सेड नो, आई वांट हिम, बट देयर वाज अ पर्पस फॉर दैट। तो वो मना नहीं कर सके, तो नित्यानंद प्रभु को भेज दिया सन्यासी के साथ। और जैसे ही उन्होंने भेजा, दे स्टार्टेड क्राइंग, एकदम टूट गए थे बोथ पेरेंट्स, पद्मावती और हडाई पंडित। और ऐसे ही कुछ महीने बीत गए, ऑलमोस्ट नियरली 3 मंथ्स। और उस समय जैसे नित्यानंद प्रभु इनिशियली, जैसे वो सन्यासी चले गए, इमीडिएटली 2-3 मिनट के अंदर सारे जो विलेज के लोग हैं सभी आ गए कि कौन लेके गया नित्यानंद प्रभु को, कौन है ये सन्यासी, हम हमारे बच्चों को दे देते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु को रखें। तो दे वर रेडी टू गिव देयर ओन चिल्ड्रन टू कीप नित्यानंद प्रभु बैक। बट दैट्स व्हाई द होल विलेज वाज सो अटैच्ड टू नित्यानंद प्रभु। बट इन जस्ट फ्यू सेकेंड्स वो सन्यासी भी गायब और नित्यानंद प्रभु भी गायब। इनफैक्ट शास्त्रों में अभी तक देर इज नो क्लैरिटी कि वो सन्यासी कौन थे, वो उनका जो आइडेंटिटी है, इट इज ऑल वेरी हिडन, सो इट इज अ ग्रेट मिस्ट्री, नोबडी रियली नोज अबाउट दैट। सम हिंट्स आर देयर बट नोबडी रियली नोज। तो गायब हो गए वहां से। और इसके 3 महीने के बाद हडाई पंडित और अम, माता जी पद्मावती दोनों का एक साथ देहांत हो। बिकॉज दे मिस, जस्ट लाइक दशरथ महाराज लिफ्ट हिज बॉडी सेपरेशन में, बिल्कुल वैसे ही बोथ द पेरेंट्स आल्सो डाइड बिकॉज ही कुडंट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट निताई। बट इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट, हमारे मॉडर्न टाइम्स में बहुत मुश्किल है ये समझना, लेकिन दिस इज द वे ऑफ रिनंशियंस। जब लोग संन्यास लेते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे। एनीवे, नित्यानंद प्रभु सन्यासी नहीं थे, ब्रह्मचारी थे। उस टाइम पे एज अ स्टूडेंट ही वॉकड विद द सन्यासी। लेकिन नित्यानंद प्रभु गए, पूरे भारत का भ्रमण किया, सारे तीर्थ पे गए, दक्षिण भारत भी गए और उत्तर भारत में भी गए। बंगाल में तो वैसे भी ही हैड डिफरेंट प्लेसेस, ही वेंट टू द्वारका, हर जगह गए थे। चैतन्य महाप्रभु इनफैक्ट उतने जगह नहीं गए, उतने मंदिर नहीं गए। दक्षिण भारत तो बहुत सारे मंदिर में गए, और लेकिन जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, महाप्रभु नहीं गए वहां पे। वृंदावन, मायापुर, वाराणसी गए, ऐसे कुछ जगह गए थे महाप्रभु। एनीवे, सो नित्यानंद प्रभु तो हर जगह गए थे। एनीवे, सो नाउ कम्स टू द टाइम when नित्यानंद प्रभु वेंट, ही वाज 12 years old, सन्यासी के साथ गए। उसी समय पे in another location Chaitanya Mahaprabhu was born. So there's a 12 years difference between the two. तो नित्यानंद प्रभु आफ्टर मेनी मेनी इयर्स वो वापस आए मायापुर में। तब तक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु वो मिले नहीं थे। तो जैसे वो मायापुर के अंदर आए, चैतन्य महाप्रभु, उस समय तक चैतन्य महाप्रभु भी बड़े हो गए थे और उन्होंने भी संन्यास ले लिया था। एंड ही गॉट अ फीलिंग एट दैट टाइम, सॉरी, संन्यास नहीं लिया था उन्होंने, संन्यास से पहले था। बिकॉज नित्यानंद प्रभु was 32 years old और महाप्रभु was 20 years old उस टाइम पे। सो संन्यास नहीं लिया था महाप्रभु, टू संन्यास एट द एज ऑफ 24। सो इट वाज लिटिल बिफोर हिज संन्यास। सो नित्यानंद प्रभु जैसे वहां पे मायापुर में आए, महाप्रभु could feel it that something is different. Something is different in the soil, something is different in the air, and he was wondering कि something is going on. And then महाप्रभु जैसे उनके जो बाकी के भक्त हैं, श्रीवास ठाकुर हैं, पंचतत्व हैं, उनके साथ जब चल रहे थे, एक समय उन्होंने बोला कि बस एक 2-3 दिन के अंदर समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन, कोई स्पेशल आने वाला है। एंड उन्होंने पूछा कौन कौन आने वाला है, तो महाप्रभु ने बोला कि कोई तो आने वाला है, आई एम फीलिंग। और उस समय महाप्रभु जब रात को ही वाज टेकिंग रेस्ट, तो महाप्रभु के सपने में दाऊ जी आए, बलराम। और बलराम ने बोला कि आई एम कमिंग, योर एल्डर ब्रदर।
बी रेडी। तो नित्यानंद प्रभु उनके सपने में आए और उनको बोला कि मैं आ रहा हूँ। तो महाप्रभु एकदम ही गॉट अप एंड ही सेड, दाऊ जी आ रहे हैं, बलराम इज कमिंग, एंड एवरीबडी गॉट कंफ्यूज। अगर अचानक समबडी टेल्स यू बलराम इज कमिंग, कौन, हु इज बलराम, सो बलराम जी आ रहे हैं एंड गेट रेडी, गेट रेडी। तो उन्होंने बोला सभी को कि गो टू द मार्केट प्लेस, यहाँ पे जाओ, वहां पे जाओ, ढूंढो बलराम कहाँ पे है। सभी गए इधर उधर, लेकिन बलराम कहीं पे भी नहीं। So they came back and they said, we couldn't find him. So Mahaprabhu said, I will find him. So they all went together and they found Nityananda Prabhu. They embraced each other. And uh, जो वो सिचुएशन था, हम लोग शायद शब्दों में या लिखित में हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतना इतना उनका एक्सप्रेशंस उस टाइम पे ऐसा था कि कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। देयर लव वाज सो इंटेंस कि दे वर समटाइम्स दे वर क्राइंग, समटाइम्स दे वर लाफिंग, सो इंटेंस। एनीवे, सो later on, Mahaprabhu was touching Nityananda Prabhu's feet. Nityananda Prabhu was touching Mahaprabhu's feet. Both were touching each other's feet. But after this, Nityananda Prabhu, he almost became unconscious and he fell on the lap of Chaitanya Mahaprabhu. And Mahaprabhu was patting him. So some devotees इसको देख के उनको याद आ गया, जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और भगवान राम के थाइस पे वो ऐसे सोए हुए थे। तो दे रिमेम्बर दैट, और कुछ भक्त बोलने लगे कि अरे ये तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, भगवान तो अनंत के ऊपर सोने वाले हैं और यहाँ पे अनंत भगवान के ऊपर सोए हैं, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो सम डिवोटीज आर लुकिंग एट इट वेरी डिफरेंटली। सो नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद नित्यानंद प्रभु उठ गए एंड ही सेड दैट आई एम गोइंग टू डेडिकेट माय लाइफ टू यू, माय लाइफ बिलोंग्स टू यू henceforth. So Mahaprabhu said, okay. So he said, give me an order. मैं क्या करूं? Give me some order. So Mahaprabhu told him, and Haridas Thakur, another great devotee. और हरिदास ठाकुर किन के अवतार हैं? लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मदेव। एंड Mahaprabhu told both of them, यारे देखो तारे कहो Krishna उपदेश, that wherever you go, give Krishna उपदेश, wherever whomever you meet, you speak about Krishna. यारे देखो तारे कहो Krishna उपदेश, भगवान को उपदेश, give, tell them about Krishna. So they took it as their life and soul, as their mission. तो दोनों प्रीच करने लगे, हरिदास ठाकुर भी प्रीच करने लगे और नित्यानंद प्रभु भी प्रीच करने लगे। और नित्यानंद प्रभु को कहते हैं अवधूत, अवधूत शिरोमणि। अवधूत इज अ वेरी स्पेशल प्लेटफॉर्म। वो सन्यासी नहीं है, सन्यासी से भी ऊपर है अवधूत प्लेटफॉर्म। अवधूत, अव मतलब जो अम, सब जो गिरे हुए हैं, वह दूता मतलब वन हु प्यूरिफाइज, वन हु प्यूरिफाइज, जो सबसे जो गिरे हुए हैं उनको भी प्यूरिफाई करने वाले अवधूत। और बहुत सारे अवधूत हैं, जैसे दत्तात्रेय, दत्तात्रेय को भी अवधूत कहते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु अवधूत शिरोमणि है, शिरोमणि, अवधूतों में भी शिरोमणि। सो नित्यानंद प्रभु एक बार क्या हुआ, इधर उधर गए, प्रीचिंग किया और बहुत सारे लोगों को का उद्धार भी किया उन्होंने। और उस एक बार एक मार्केट में गए थे और प्रचार कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने देखा कुछ झगड़ा हो रहा था, कुछ तो हो रहा था वहां पे। और नित्यानंद प्रभु ऐसे देख रहे थे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो कुछ लोगों ने, मार्केट के जो शॉपकीपर्स हैं, उन्होंने बोला वहां पे मत जाइए, वहां पे मत जाइए, आप वापस चले जाइए यहाँ से। तो बोले लेकिन हो क्या रहा है वहां पे? बोले, दो गुंडे हैं वहां पे। कौन है गुंडे? दो भाई हैं, एक जगाए और एक मदाए, जगाए मदाए। एंड दोनों 7.5 फुट टॉल, जायंट्स, बिग बॉडी, और इतने खतरनाक दोनों। कहते हैं कि ऐसा कोई पाप इस दुनिया में है ही नहीं जिसको इन इन दोनों ने नहीं किया। ऑल काइंड्स ऑफ सिंस दे हैव डन एवरीथिंग, all kinds of molesting women or kidnapping or burning houses, murder, stealing, दारू पीना, गौ हत्या करना, सब कुछ, they did everything। शास्त्रों में कहते हैं कि ये दोनों भी अवतार हैं। किनके अवतार? हाँ, जो सबसे एक्सपीरियंस है, असुर बनने में एक्सपीरियंस। हाँ, जय, जय और विजय, तीन जन्म का एक्सपीरियंस है।
तो भगवान ने बोला एक और बोनस आ जाओ, तो दोनों आ गए। सो विद देयर एक्सपीरियंस, तो जगाए और मदाए, सभी ने बोला डोंट अप्रोच देम, दूर चले जाओ, कल आ जाओ, कल आ जाओ, हाँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि अच्छा ये लोग इतने बुरे हैं क्या? फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला कि वो सोचा कि अगर ये दोनों डिवोटी बन गए, then truly I will be called as a servant of Mahaprabhu, and everybody will have faith in Sankirtan. तो इन दोनों को मैं भक्त बना के रहूंगा। तो हरिदास ठाकुर ने बोला नहीं, प्लीज स्टॉप दिस, डोंट थिंक लाइक दिस, बहुत सारे लोग हैं, हम लोग जाके उनको प्रीच करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला कि कैसे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ही इज अवधूता, ही हैज टू डिलीवर द मोस्ट फॉलन। और ये बलराम जी ऐसे ही है, जैसे द्वापर युग में दुर्योधन है, nobody liked दुर्योधन, even Krishna ignored दुर्योधन, but Daoji Balram always blessed Duryodhan. He always supported Duryodhan because there's nobody to bless you. He said, don't worry, everybody is going to hate you, I will love you. So Daoji is like that. That's why he is our only hope, because in this world we all have a little bit of Duryodhan within us also. We're not very nice people inside, externally whatever we may be, हमारे अंदर भी बहुत दुर्योधन है, जगह मदाई है, ऐसे है ना। तो that is why the most merciful is Nityananda Prabhu, because if everybody else rejects us, Nityananda Prabhu is always there with us. Daoji Balram is always there with us. So this Daoji, Nityananda Prabhu made up his mind. So they went to Jagai and Madai and they told them, Hari Bol, Hari Bol. And both of them were fully drunk. With red eyes, they looked at Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. They said, what? They said, chant Hare Krishna and be happy. So Hare Krishna, Hare, और उन्होंने कुछ ढूंढा ऐसे, एंड स्टार्टेड चेजिंग, और दोनों भागने लगे वहां से, हम नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर दोनों, लॉर्ड ब्रह्मा और दाऊ जी दोनों भागने लगे वहां से। सो दोनों भाग रहे थे और ये दोनों पीछे पीछे डंडा लेके। एंड बाकी मार्केट में सभी ने बोला कि मैंने बोला था तुमको कि डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, नहीं सुना, अभी भागो भागो यहाँ से, अभी दोनों मरने वाले हैं। और भाग रहे थे, और हरिदास ठाकुर ने बोला कहाँ पे फंसा दिया, आई वाज सो हैप्पी, आई एम चैंटिंग हरे कृष्णा सो हैप्पीली, और इसके साथ नित्यानंद प्रभु के साथ ये दाऊ जी ने भेज दिया मुझे। एंड भागने लगे। एंड नित्यानंद प्रभु भागते भागते हंस रहे हैं, नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु, आई एम गोइंग टू रन फास्टर देन यू। तो हरिदास ठाकुर की थोड़ा मुझे उम्र भी हो गया था, he was not- तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे थे पकड़ेंगे तो तुम्हें पकड़ेंगे, मुझे नहीं। तो एनीवे, बोथ ऑफ देम रैन, लेकिन ये दोनों जगाए और मदाए, ये दारू वारू पी के इतने मोटे भी हो गए थे, तो लेकिन वो भाग नहीं पाए उतना। तो फॉर सम टाइम दे चेज, उसके बाद दोनों थक गए, दोनों गिर गए, नीचे गिर गए। और उनका स्वभाव ऐसे था कि बिकॉज दे डिड नॉट फाइंड निताय और हरिदास ठाकुर, क्या करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। एक दूसरे को मारने लगे कि मतलब कोई मिला नहीं मारने को, तो एक दूसरे को मारने लगे, तो चोट भी लग गई। और उसके बाद जैसे शराबी लोग करते हैं ना सड़क पे, तो एक दूसरे को मारने लगे, उसके बाद सॉरी सॉरी बोलने लगे और मसल करने लगे एक दूसरे को। तो ऐसे थे जगाए मदाई। तो कहते हैं कि जगाए और मदाई इतने बड़े असुर थे, इतने बड़े पापी थे कि नरक लोक में इसकी कोई पनिशमेंट नहीं था। उनको पनिश दे करने के लिए कोई पनिशमेंट था ही नहीं, मतलब देयर वाज नो सिस्टम, देयर वाज नोबडी हु हैज कमिटेड सो मेनी सिंस इन द पास्ट, सो इवन यमराज वाज वेरी कंफ्यूज्ड। तो यमराज उस टाइम पे उन्होंने विश्वकर्मा द आर्किटेक्ट, उनसे बात की और उन्होंने बोला कि एक स्पेशल सिस्टम क्रिएट करते हैं, स्पेशल पनिशमेंट्स, जब ये मरेंगे तो दोनों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि अभी कोई ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं, इतने सारे पाप कर्म किए हैं उन्होंने। तो यमराज बिजी थे वहां पे, और ये दोनों यहाँ पे ऐसे। फिर नेक्स्ट डे हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य से कहने लगे कि प्लीज मेरा
ये प्रीचिंग का जो पार्टनर है, पार्टनर प्लीज चेंज कर दो, मुझे इसके साथ नहीं जाना है, ये पागल है, मुझे इसके साथ नहीं जाना है। और ये एक्सप्लेन करने लगे कि कभी कभी ये ये नदी के अंदर जंप कर देते हैं और नदी के अंदर क्रोकोडाइल्स होते हैं, तो क्रोकोडाइल्स, कोई क्रोकोडाइल को चेस करता है क्या? नित्यानंद प्रभु क्रोकोडाइल को चेस करते हैं, तो अवधूत हैं तो क्रोकोडाइल को चेस करते हैं। और कभी कभी किसी के घर के अंदर चले जाते हैं और घर के अंदर उन जो दूध है, पूरा बकेट दूध पी जाते हैं नित्यानंद प्रभु। ऐसे करते हैं नित्यानंद। तो हरिदास ठाकुर ने बोला कि और कल तो हद हो गई इन दोनों, जगाए और मदाए। और हरिदास ठाकुर, हमारे अद्वैत आचार्य ने बोला, जगाए और मदाए वो तो लोग पागल है, बहुत बढ़िया माफिया लोग हैं वो। और कहते हैं दैट इवन लोकल किंग्स और जो लॉ एनफोर्समेंट, वो भी नहीं जाते थे उस टाइम पे जगाए मदाए के पास, वेरी डेंजरस पीपल। फिर नेक्स्ट डे नित्यानंद प्रभु ने बोला हरिदास ठाकुर को, सॉरी सॉरी, चल चल चल, सो साथ में गए। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली फिर से ये दोनों दिख गए। और एक्चुअली दिस वाज द प्लान ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु को पता था कि वो दोनों वहां वहां पे रहेंगे। एंड हरिदास ठाकुर को बोला कि यहाँ यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है, और घूम के वहीं पे गए और मिल गए ये दोनों। हरिदास ठाकुर ने बोला प्लीज यार, दिस इज टू मच, ऐसे नहीं करना है, प्लीज विल जस्ट गो समवेयर एल्स। नित्यानंद प्रभु नहीं माने। और नित्यानंद प्रभु so merciful that he went and he approached जगाए और मदाए दूसरी बार। और उनको he encouraged them that you please chant. I know you're suffering, I know everybody in this world hates you, but I don't hate you, I will always love you, I will always take care of you, you please chant, that's all you have to do. और इन दोनों में से एक है जगाए, एक है मदाए। और मदाई, उसने क्या किया, ही वॉज ड्रिंकिंग अल्कोहल एक पॉट में, मटके में। और ही टुक द पॉट एंड ही हिट नित्यानंद प्रभु विद दैट पॉट। और इतने जोर से ही हिट दैट द पॉट ब्रोक। और नित्यानंद प्रभु started bleeding from his head and his clothes, everything was drenched in blood. And Nityananda Prabhu went on his knees. But again, Nityananda Prabhu, who is Balram himself, he is the Lord of the universe. And that Dauji was folding his hands in front of Madai and told him that, um, don't worry, मैं नाराज नहीं हूँ, I will forgive you for this also. All you have to do is chant Hare Krishna. बस Hare Krishna बोलो, बस, no problem. I don't mind this. एंड बाय दिस टाइम कुछ लोकल लोग गए महाप्रभु के पास। और महाप्रभु, जैसे ही महाप्रभु ने सुना कि ऐसा कुछ हो गया है नित्यानंद प्रभु को, ही इमीडिएटली अराइव्ड इन दैट प्लेस। महाप्रभु इमीडिएटली वहां पे आए। और जैसे उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, महाप्रभु ने ही लिफ्टेड हिज हैंड और जोर से कहा, चक्र 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 चक्र। एंड सुदर्शन चक्र अपीयर्ड इमीडिएटली। और जैसे ही सुदर्शन चक्र को देखा, इनफैक्ट इससे पहले, जिस जिस बिफोर महाप्रभु अपीयर्ड देयर, Madai hit Nityananda Prabhu, and Jagai, what happened was he was looking at this। और उन्होंने अचानक, उनको भी शॉक हो गया और उन्होंने बोला, नहीं, डोंट हिट हिम, छोड़ दो। एंड ही स्टॉप्ड मदाई। जगाई ने मदाई को रोका कि दोबारा मत मारो। क्योंकि ही फेल्ट, नित्यानंद प्रभु को देख के इतना, मतलब खून भी निकल रहा है, फिर भी ये कह रहे हैं कि जस्ट चैंट हरे कृष्णा, आई फॉरगिव यू। तो उनका वो स्वभाव देख के जगाई फेल्ट वेरी, दिस पर्सन इज नॉट ऑर्डिनरी। सो उन्होंने मदाई को रोक दिया कि दोबारा मत मारो। मदाई ने बोला कि मारना मारना है मुझे उसे, नहीं, बट ही वाज स्टॉपिंग इट। फिर महाप्रभु आए और सुदर्शन चक्र लेके आए। फिर ही वाज अबाउट टू किल मदाई। उस टाइम पे नित्यानंद प्रभु, he caught the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu and he said, no, no, please don't kill them. Mahaprabhu said, anybody touches my devotee, I'm going to kill them, I'm going to chop their head off. तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से पूछा कि अगर आप जगाए और मदाई को मारेंगे तो कलयुग में हम क्या करेंगे, क्योंकि सभी ऐसे ही हैं कलयुग में, कितनों को मारेंगे और कौन, मतलब कौन रहेगा फिर उसके बाद कलयुग में, सभी तो ऐसे ही हैं, हम सभी ऐसे ही हैं, मतलब अंदर से तो छोटे छोटे जगाए मदाई हैं, है ना। अगर फिजिकली नहीं किया तो मन से तो थोड़ा कुछ रहेगा हमारे मन में, तो कितनों को मारेंगे। तो महाप्रभु
महाप्रभु के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए उस समय नित्यानंद प्रभु ने बोला कि इनफैक्ट जगाई ने मदाई को रोका. Jagai is a very nice person. He stopped Madai. So जैसे ही महाप्रभु heard that, महाप्रभु embraced Madai. Sorry, Jagai. He embraced Jagai और बोला you protected Nityananda Prabhu. And the moment Chaitanya Mahaprabhu touched Jagai, Jagai's Krishna Prem blossomed in his heart. Immediately he got Krishna Prema. And he realized that he was wasting his life all this time. And immediately he fell at the lotus feet of Mahaprabhu. And he was completely transformed and he was glowing. और इसको देख के मदाई को बुरा लगा कि मदाई ने बोला अरे मैंने क्या किया मुझे भी दो. ये तो मैंने जो किया इसने भी वही किया हम दोनों का अकाउंट एक ही है मुझे दो. और महाप्रभु ने बोला नहीं यू हिट नित्यानंद प्रभु you will never be forgiven. तो मदाई didn't know what to do. फिर चैतन्य महाप्रभु ने मदाई को बोला कि you beg for forgiveness from नित्यानंद प्रभु. अगर नित्यानंद प्रभु आपको क्षमा करेंगे then I will forgive you. और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि क्षमा की मतलब वो जरूरत ही नहीं है because I have not even taken offense. That is Nityananda Prabhu. He doesn't even take offense. So looking at this, Mahaprabhu said, okay, since Nitai has forgiven you, I will also forgive you. But you should not ever commit these sins again. So he embraced Madai also. And when he embraced Madai, he took the complete sins of Jagai and Madai. और कहते हैं नरक लोक में जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचा यमराज को कि जगाए और मदाए उनका अकाउंट क्लियर हो गया यमराज मूर्छित हो गए यमराज फेंटेड ये ऐसे कैसे हो सकता है दे आर द मोस्ट सिंफुल और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन हो गया सब कुछ हो गया नया सेटअप हो गया सो चैतन्य महाप्रभु वाज लाइक दैट इनफैक्ट टू शो दिस सभी बाद में गए महाप्रभु के घर पे एंड महाप्रभु ने सारे भक्तों को बोला कि द पास्ट इज पास्ट जो जगाए मदाए ने पास्ट में किया लेट दैट बी इन द पास्ट फ्यूचर में कोई इसके बारे में बात नहीं करेगा कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा जगाए मदाई को कि तुम लोग ऐसे करते थे वैसे करते थे तो ट्रीट देम जस्ट लाइक एवरीबडी एल्स और महाप्रभु इतने निमाए इतने रिस्पेक्टेबल स्कॉलर थे उस टाइम के दैट जब वो कीर्तन करते थे ना इवन हिज ओन वाइफ महाप्रभु's wife Nimai's wife even she would think 100 times before touching Mahaprabhu body during Kirtan. जब महाप्रभु नाचते थे, his wife also would not come and touch him because he was so much. But Jagai Madai for the first time they are doing Kirtan और कीर्तन करते करते ऐसे महाप्रभु को dash करने लगे ऐसे. So they are both dancing and Mahaprabhu used to accept that also. He was very happy that both of them became devotees. और ये दिखाने के लिए महाप्रभु ने बोला कि I want to tell you that I have taken your sins. तो उनके सारे जो पाप लिए तो महाप्रभु ने बोला I will show you the sins. और महाप्रभु ने ऐसे किया the entire body of Mahaprabhu became black in color. Pura black. Mahaprabhu's golden color, he became completely black. Or because of the sins of Jagai and Madai. He said, I've taken it all on me. And so he was asking the devotees, how do I look now? And everybody said, just like Sham Sundar, Krishna. Just like Krishna, you're looking the same color. So, Mahaprabhu, after that, he said that सभी कीर्तन करो जैसे आप कीर्तन करेंगे माय कलर विल कम बैक आई विल बिकम अ गोल्डन कलर अगेन सो एवरीबॉडी स्टार्टेड फिर महाप्रभु's कलर केम बैक सो सभी ने पूछा अभी कहाँ गए ये सारे पाप कहाँ हैं तो महाप्रभु ने बोला all this is in the storehouse all the sins of Jagai and Madai is in the storehouse and this sin ये पाप ट्रांसफर होगा किन को ट्रांसफर होगा in the future those who offend my devotees these sins will be transferred to them. So that storehouse is still there. They've committed so many sins that is still there in the account. And anybody who offends Vaishnavas, anybody who offends devotees of Krishna, they get a share of that papa of Jagai and Madai. Right? So that is still there. That is why we should be very careful with Vaishnavas. Uh, so after this particular incident,
Nityananda Prabhu. Chaitanya Mahaprabhu is known as Mahavadanyaya. Mahavadanyaya means the most magnanimous. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gauratvashe Namaha. So, Namo Mahavadanyaya. But spiritual world में ऐसा है कि नंबर वन तो एक है. यूजुअली जब हम कहते हैं कि देर इज वन नंबर वन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नंबर वन भी दो हो सकते हैं. तो दोनों चैतन्य महाप्रभु भी नंबर वन है और नित्यानंद प्रभु भी नंबर वन है. बट इट इज सेड दैट नित्यानंद प्रभु इज मोर मर्सीफुल देन चैतन्य महाप्रभु. हमारी भगवत गीता में कृष्णा सेज दैट दिस नॉलेज ऑफ द भगवत गीता should not be given to envious people. Krishna says that. But Chaitanya Mahaprabhu gives it to everybody because Chaitanya Mahaprabhu is more merciful than Krishna. So it is just like we are going to write some exam. Krishna will give you very strict question paper and you have to write answers. Pakka, he's going to sign everything, right? But Chaitanya Mahaprabhu will, even if we fail, चैतन्य महाप्रभु जैसे कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं हैंड राइटिंग के भी मार्क्स दे देते हैं, ग्रेस मार्क्स, सो गुड बिहेवियर ये वो सब मिला के पास हो गया. तो महाप्रभु ऐसे करते हैं. नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ भी मालूम नहीं है, नित्यानंद प्रभु से डोंट वरी, साइन करो और जाओ, आई टेक केयर ऑफ इट. नित्यानंद प्रभु इज द मोस्ट मर्सीफुल, सबसे मर्सीफुल है. सो दिस इज निताई. So Nitai, his mood is just like the same Lakshman. So it's a good opportunity to think of Lakshmana also. Lakshmana, जैसे हम लोग जब रामायण का पाठ करते हैं, रामायण के बारे में सोचते हैं, तो यूजुअली हम लोग सोचते हैं भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी, बट वी डोंट टॉक मच अबाउट लक्ष्मण. बट दिस इज द सेम लक्ष्मण हु केम एज बलराम और बाद में नित्यानंद प्रभु बन के भी आए. एंड दिस लक्ष्मण इज सेड दैट ही भगवान राम वाज हिज ब्रेथ, he couldn't live, he cannot even think of anything else but Lord Ram. um, in fact, when they went on the Vanvas, माता सीता और भगवान राम जब चल रहे थे, उनसे पहले जाते थे लक्ष्मण, few steps ahead, a few yards ahead, because he used to keep moving away. जो छोटे छोटे पत्थर हैं, thorns हैं, he used to remove that. But the lotus feet in Ramayana, the lotus feet of Lord Ram and Mother Sita is explained as very soft lotus feet. Their lotus feet was very soft, like flowers. But Lakshmana, his lotus feet was hard. It was filled with cuts and it was bleeding. Why? Because he used to push all the pebbles and thorns and everything to make the road soft for Lord Ram and Mother Sita. That is him. Lakshmana never slept for 14 years. He did not sleep, and he transferred his sleep to his wife. He spoke to Nidra Devi. Nidra Devi is a Devi. Okay. She's also a small amsha of Mahalakshmi. Mahalakshmi का एक अंश Nidra Devi है. Or if anybody does not get suffering from insomnia, you don't sleep at night, you can actually try it. If you call Nidra Devi, she will come. Difficulty, she may not go. Will sleep for a very long time. So he spoke to Nidra Devi and he said that I cannot sleep 14 years. So you please, but Nidra Devi said, but we all have an account to sleep. So he said, you can transfer the sleep to my wife who's waiting there and she will sleep on my behalf. That is a good service, है ना? वो सेवा हम लोग कर लेंगे. So, what is the name of Lakshmana's wife? Yeah. So she also was there in separation. It's not an easy thing to stay away from her husband for 14 years. And for 14 years she stayed. And she also wanted to go along with Lakshman at that time with Sita Ram and Lakshman. She also said, how am I going to live with you without you? I will also come. Please take me. He said, if you come along with me, then I'll have to take care of you. And I will not be able to focus on Sri Ram and Mother Sita. So it is going to be our service, your service, and my service to make sure that they both are taken care of. So that was her service to stay away from Lakshman in separation. So
This was Urmila Devi. Now, Lakshmana used to serve, and the beauty of Lakshmana was that he never took any offense also, particularly during this time जब वो मारीचा आया था, वो डियर, गोल्डन डियर, और भगवान राम उसके पीछे भागे थे। और उस समय क्या हुआ था कि अम, बहुत दूर गए थे, और ये हुआ था नासिक में। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र में। और नासिक नाम क्यों पड़ा उस जगह का? जब शूर्पणखा का नाक कटा था वहां पे, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा नासिक। नासिक कहते हैं, लोकल्स नासिक कहते हैं, जो भी दोनों प्रोनाउंसिएशन है। सो वहां से भगवान राम मारीचा डियर को भगा के कहाँ पे आए? कर्नाटका। कर्नाटका में शिमोगा। सो यू कैन लुक एट द डिस्टेंस, वहां से शिमोगा तक भाग के आए लॉर्ड राम। एंड एट दैट टाइम उनका बॉडी भी अलग था। लॉर्ड राम was 14 feet tall, and you can imagine the speed. So he was at extreme speed. He comes running, and before killing Maricha, Maricha shouts loudly, uh, "Hey Sita, hey Lakshmana," in the voice of Ram. He shouts in this particular way to create confusion, and then he dies. So Bhagwan Ram kills him, and he carries the deer on his shoulder. He carries the deer on his shoulder, and Lord Ram thinks that, I think they must be confused, but Lakshmana is there. I think he will be able to handle it. Lakshmana knows, but Sita Devi may get confused. So he started running back, Lord Ram. But meanwhile, Sita Devi tells Lakshman, "I heard this. You better go. Immediately, you should go." And he says, Mata Sita, I can't leave you and go because, Lord Ram has told me कि मैं यहाँ पे रहूं and I have to protect you. लेकिन माता सीता ने बोला, नहीं, अभी जाओ, immediately go. Then uh, he did not go. So to hurt Lakshmana, to make sure that somehow he goes, Mata Sita tells him a very painful thing. She says that maybe you're not going because you want Sri Ram to be dead. Maybe because you're interested in me. So Lakshmana, it is said that he never even looked at the face of Sita Devi. He was always looking at her Sri Charana. He doesn't even know what she looks like. That is the dedication of Lakshman. And he was so shattered internally when he heard this. And he just folded his hands and he said, Mata, I'm going to go now. I'll look for Lord Ram. But my request is, don't get out of the hut. Don't talk to anybody. Just stay inside. और लक्ष्मण गए, और लक्ष्मण वहां पे गए, हाफ वे मिले भगवान राम से। भगवान राम ने बोला, यहाँ पे क्या कर रहे हो? एंड he said, माता सीता ने भेजा मुझे। he did not say, ऐसे बोला, your wife said this, you know uh, हम लोग तो बोल देते हैं ना ऐसे, I am doing so for 14 years, I'm doing so much work, and after this is what I get in return. But Lakshmana never said that. He didn't even complain. Lord Ram didn't even know this incident happened. एंड दोनों आए वापस। जब आए, by then this whole incident had happened. Ravana had taken Sita Devi and gone away. और at that time Lord Ram scolds Lakshmana, and he says, "You are so incompetent. I give you one work and you're unable to do that one work." And he accepts, "Yes, I am incompetent. I'm very sorry." And he takes the complete blame. After so much of service of 14 years, he gets a blame, a false blame by Sita Devi, and he gets scolding by Sri Ram. There is no greater devotee than Lakshmana, to portray what actually character is, what actually a devotee is supposed to be. So, in fact, after this entire incident and the whole war, no, sorry, not war, when Hanumanji goes there uh, and meets Sita Devi in Ashokavana. Right? At that time, even before Sita Devi asks, Sita Devi इससे पहले कि भगवान राम कैसे हैं, ये पूछने से पहले सीता देवी पूछते हैं, मेरा लक्ष्मण कैसा है? She asks, "How is my Lakshman?" Because she remembers that I broke Lakshman's heart. So she says, "How is my Lakshman?" I said something very rude to him and he went away. And I said that only so that he can go away. Otherwise, he wouldn't have left.
So how is my Lakshman? She asks. So she thinks of him in such a loving way. And Lakshmana also always thought of her as a mother. And in fact, even during the Agni Pariksha, Lakshman, who never gets angry with Lord Ram, never disagrees with Lord Ram, for the first time he got angry with Lord Ram also. He says, how can you let this happen? How can you let Mother Sita walk into fire? So this is Lakshmi. So this is Dauji, Balram, Lakshmana, and the same Dauji appears as Nityananda Prabhu. So there's nobody more merciful than them. Nityananda Prabhu ki, Lakshmana ji ki, Dauji ki, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Okay, so tomorrow is Nityananda Trayodashi. So generally we do a half day fast. So if it is possible for you, you can fast till 12 o'clock in the afternoon. And after that, you can have your usual prasadam. If you're unable to fast for the entire afternoon, you can have some water. If that is also not enough, you can have some fruit. But if it is possible, please fast till half a day. Okay. All right. So any questions before we close the day? All right. So today, yes, Prabhuji, yes. Roji, when we think about service, Radharani always thinks about serving Krishna in every possible way to make him happy. And Lakshmanji or Nityanand Prabhu, he also thinks to serve Krishna all the time. So how do you compare? I just think about the way they try to serve. Mm. So what bhava and just help us with some difference. One is expansion, one is energy, and is there any difference or Yeah. In fact, the greatest servant of the Lord, or the greatest devotee who offers service to the Lord, is Srimati Radharani. She is the source of all seva. That is why, while explaining who Lakshmana is, the description of Lakshmana by Valmiki Muni in the Ramayana, he says, Lakshmi Sampanno Lakshmanaha. He says, Lakshmana is Lakshmi Sampanna. He says that he has all the Lakshmi in the world. So people think that, oh, like he's the richest because he has all the Lakshmi. He says, Lakshmi Sampanno Lakshmanaha means that this Lakshmana has the complete grace of Lakshmi because Lakshmi is always serving Narayana. And one who is blessed by Lakshmi is always serving Krishna or Narayana in that particular way, in any form, our Ishta form of the Lord. So, Radharani or Mahalakshmi is the origin form of seva, but they serve in different forms, in different moods. जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी का मूड है दास्य भाव. Uh, Hanuman ji will never keep his hands on Ram like that, like a friend. साख्य भाव नहीं है, दास्य भाव. और लक्ष्मण जी का दास्य भाव है, लेकिन थोड़ा सा साख्य भाव भी है. लिटिल बिट ऑफ फ्रेंडशिप. कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दैट. लक्ष्मी जी का माधुर्य भाव भी है और दास्य भाव भी है. दोनों दोनों है. शी इज इन माधुर्य भाव भी बिकॉज शी ऑल्सो शोज लव, शी ऑल्सो शोज एंगर, but she also is always looking for ways to serve. Radharani ka purely Madhurya Bhav, though she is serving completely in Madhurya Bhav. And that's why she is able to scold Krishna also. She is able to get angry with Krishna also. And Krishna, she never says sorry to Krishna. Krishna always says sorry to her. है ना? हमारे घर में भी ऐसा ही होगा शायद. तो he Krishna always says sorry. That is the mood. So बहुत सारे ऐसे डिवोटीज हैं, लेकिन देयर मूड्स आर डिफरेंट. जैसे इवन अमंग्स फ्रेंड्स, अर्जुना इज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा. और जैसे गोपा बॉयज हैं, वृंदावन के जो गोप लड़के हैं जो कृष्णा के साथ खेलते हैं, वो भी साख्य भाव में है. दोनों साख्य भाव में है, लेकिन देर इज अ डिफरेंस इन दैट. क्योंकि अर्जुना विल देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ ऑ एंड रेवरेंस. थोड़ा ऐश्वर्य भाव भी है, लेकिन वहां पे ऐश्वर्य भाव नहीं है वृंदावन में. वो सिर्फ प्योरली साक्य भाव है. वो खेलते हैं कृष्णा के साथ, रेसलिंग करते हैं, कृष्णा के ऊपर चढ़ते हैं, ऐसा सब करते हैं. अर्जुना विल नेवर डू दैट, दो दिया इन साक्य भाव. तो ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट मूड्स आर देयर, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आर देयर. इनफैक्ट ऑल ऑफ अस ऑल्सो
have a different flavor with Krishna. But just that we don't know what that flavor is because we are in a conditioned position, right? We don't know what that flavor is. That is why we should not imitate any of them. Our only mood right now is Dasya Bhav. We should only serve as dasas and dasis. And serving Krishna in this particular way, our heart gets purified. Cheto darpana marjanam bhava mahadava nirvapram. So our heart gets cheto darpana. Darpana means mirror. So we look at a mirror, it's filled with dust. You cannot see your reflection. How do you see your reflection? By cleaning the mirror. जब mirror clean होता है, you will be able to see your reflection. बिल्कुल वैसे ही by chanting the darpana, हमारे हृदय का दर्पण clean हो जाता है. उसके बाद you will be able to see, अच्छा, this is me, this is my position, this is how I'm supposed to serve Krishna. This becomes the mode. So this is how we're supposed to serve, right? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Any other questions? Yes. yes. लाइक Sir, yeah. नहीं आप पूछ लीजिए जैसे राम और लक्ष्मण जो थे वो एक परिवार में पैदा हुए मतलब एक ही परिवार में थे ऐसे ही कृष्ण जी बलदेव भी एक परिवार में थे तो अपने चैतन्य महाप्रभु और Nityananda Prabhu. ये परिवार में अलग अलग ही पहचाना कैसे मतलब ये अलग अलग हाँ अलग अलग मदर्स से पैदा हुए थे लेकिन दिस इज अ वेरी जो आपने प्रश्न पूछा बहुत डीप है इफ यू लुक एट इट हिस्टोरिकली और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है चैतन्य महाप्रभु के एक बड़े भाई थे एंड बड़े भाई का नाम था विश्वरूप और ये विश्वरूप जब चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े थे महाप्रभु से और जब महाप्रभु 5 साल के थे दिस विश्वरूप ही टुक संन्यास संन्यास लेके चले गए उस टाइम पे और ये विश्वरूप कहते हैं कि ये संकर्षण के अवतार है संकर्ष है अनंत देव आदिशेष उनके अवतार सो जैसे भगवान कृष्ण के आने से पहले बलराम जी आते हैं एंड पूरी जगह को प्यूरिफाई करते हैं सेटअप करते हैं कि ताकि भगवान आ सके तो संकर्षण विश्व रूप भी आए थे और ही सेटअप द एंटायर प्लेस ताकि महाप्रभु आ सके उसके बाद जैसे महाप्रभु आए 5 साल के हो गए और उनके पेरेंट्स उनके विवाह के बारे में बात कर रहे थे एंड ही सेड आई एम नॉट आई कैन नॉट एंड ही जस्ट लेफ्ट संन्यास लिए और वो चले गए और कहते हैं कि पंढरपुर में ही लेफ्ट हिज बॉडी लेकिन हिस्टोरिकली उनको कुछ पता नहीं है कि कहाँ पे गए क्या हो गया उनका लेकिन शास्त्र चैतन्य भागवत एक स्क्रिप्चर है उसमें कहा जाता है कि दिस विश्वरूप जो अनंत अनंत शेष के अवतार हैं वो नित्यानंद प्रभु के शरीर में विलीन हो गए क्योंकि नित्यानंद प्रभु भी आदिशेष है वो मूल है आदिशेष के मूल है तो इन दिस वे इफ यू सी अ कनेक्शन यू कैन स्टिल कॉल देम एज ब्रदर्स लेकिन बट दे वर born of different parents but there is a transcendental mysterious connection between them हरे माताजी प्रश्न लाइक मेरा प्रश्न ये है कि मुझे तो लाइक आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू लर्न ऑल द श्लोकास ऑफ द भगवद गीता इन एनी दिस जन्म और नॉट लाइक इज इट नेसेसरी टू लर्न ऑल दिस go to ISKCON temple or whatever the Bhagavad Gita says being in my normal day-to-day routine if I follow that's enough for Krishna, right? गृहे ठाको वने ठाको सदा हरि बोले ठाको ऐसे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि वेर एवर यू आर इन योर हाउस गृहे ठाको वने ठाको या फिर जंगल में घर पे हो जंगल में हो जहां भी हो सदा हरि बोलो ऑलवेज कीप चैंटिंग हरे कृष्ण सो दैट इज द गोल इज टू ऑलवेज चैंट हरे कृष्ण सो we are not sannyasis, we are grihasthas, and we have our work to do, we have our house to take care of, responsibilities to take care of. So wherever you are, you can always chant Hare Krishna. You can follow the principles. अपने अपने घर में कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है. And that is the process anyway. In fact, every house should be a temple, right?
But why do we come to a sangha like this? जैसे हम लोग एक संघ में आते हैं क्योंकि whenever you you can do a personal experiment. जैसे हम लोग कोई relatives के साथ मीट कोई फंक्शन होता है, ये होता है, वो होता है, या कोई फ्रेंड्स के साथ हम लोग मीट करते हैं, थोड़ा सा हमारा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, एंड दे टेक अस इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन. That is normal. This is how association works. So it is very important that we also meet together. जैसे हम लोग डिवोटीज के साथ मीट करते हैं, और मीट करते करते हमें इंस्पिरेशन भी मिलता है, and that is the only reason that we all meet. And it can be ISKCON. The purpose is that it's just an institution where all of us can get together. Bas, that is all. But the practice is supposed to be in your house. You should all practice in your house, just like Prabhu and Mataji, the deities they have at home. घर पे पूजा करते हैं. They take care of the deities. Right? I have an altar in my house, so I take care of deities in my house. So you should worship at home. And Bhagavad Gita shlokas, आपको एक महाप्रभु का एक पास टाइम पता है, जो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे, और वो इलिटरेट थे, पढ़ना लिखना नहीं पता था उनको. और वो एक बार उनके गुरु ने बोला कि एवरी डे स्टडी भगवत गीता, बोल के चले गए. और ये तो इलिटरेट है, और भगवत गीता भी दे दिया उनके हाथ में, अभी ये क्या करेंगे, पढ़ना लिखना नहीं जानते. तो वो क्या करने लगे कि भगवत गीता को पढ़ने लगे, और वो भी भगवत गीता को उल्टा पकड़ के पढ़ने लगे. और चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कभी कभी निंदसी, कभी हास्यसी. कभी कुछ लोग निंदन करने लगे, और कभी कुछ लोग हंसने लगे. और कहने लगे कि पढ़ क्या रहे हो तुम, उल्टा पकड़ रहे हो. एंड ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट. और उनके आंखों से आंसू निकलते थे हमेशा जब भी भगवत गीता पढ़ते थे. पीपल यूज्ड टू आस्क, व्हाट इज ही डूइंग, ही डजंट इवन नो हाउ टू रीड. तो वन डे Mahaprabhu went, and Mahaprabhu met him and asked him, you're holding the Bhagavad Gita upside down. So, oh, sorry, I did not know. So Mahaprabhu said, what are you reading? He says, actually, I don't know how to read. Then why are you holding the book? He said, my Guru Maharaj told me to read. He says, okay. Then why are you crying? He says, I'm just thinking that Swayam Bhagavan Krishna, he's working as a charioteer for Arjuna. और चैरिटर का काम ऐसा होता है, यू नो हाउ टू गाइड अ चैरिटर. जब बैटलफील्ड में टू गाइड अ चैरिटर, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, they used to, The leg. with the leg. They used to push with the leg. That if they press the left, right shoulder, that means turn right. If you kick the left shoulder, that's the only way. क्योंकि battlefield you're fighting है ना, you can't say take a left, सब नहीं बोल सकते. So they immediately, so they are trained in that particular way. So Krishna used to get kicked by Arjuna. He accepted that position, and he was saying that pure Supreme Lord is ready to sit there and get kicked by his devotee. Just thinking of that, I have tears in my eyes. So Mahaprabhu embraced him. Mahaprabhu embraced him and said that you have actually understood the Bhagavad Gita more than all the great scholars who think they have understood. They have memorized all the shlokas. They think they have understood, but actually they have not understood the Bhagavad Gita. You have understood the Bhagavad Gita. So we memorize shlokas. Srila Prabhupada told us to memorize shlokas क्योंकि जनरली क्या होता है, Prabhupada told us just like किसी हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स होते हैं, तो लॉयर्स कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 420, right, according to section this, according to section that, है ना. So otherwise if the lawyer is just speaking, जज बोलेगा क्या बोल रहे हो, there's no head or tail, give me a reference, है ना, रेफरेंस चाहिए मुझे. तो लॉयर रेफरेंस देते हैं. बिल्कुल वैसे, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ प्रीचिंग, हम लोग थोड़ा मेमोराइज कर लेते हैं, थोड़ा वी लर्न अ लिटिल बिट ऑफ भगवत गीता, ताकि हम लोग जब प्रीच करते हैं, कभी कुछ लोग बोलते हैं, अरे कृष्णा तो नेवर टोल्ड इन द भगवत गीता दैट आई एम सुप्रीम, है ना. देन वी से, अरे कृष्णा टेल्स इन द भगवत गीता, मत्त परतरम ना अन्यत, मत्तः परतरम ना अन्यत, देयर इज नोबडी एल्स ग्रेटर देन मी. कृष्णा टेल्स दिस इन द भगवत गीता. Oh, really? He says that? Because you see, lot of हमारे WhatsApp में ये वो Krishna said this. कभी-कभी some people send कोई head tail भगवत गीता में कुछ भी नहीं है, but they just send some WhatsApp message. So we should be able to see that and correct them. कि no, this is wrong.
So only when you read, when a doctor reads their books, a lawyer reads their books. So we also read our books so that we're able to correct people in Kali Yuga. Otherwise, people will say whatever they want to. That is the purpose of reading. That is the purpose of memorizing. And we also learn, we use our intelligence and memory by in the service of Krishna by trying to memorize. So, and I'll tell you a health benefit. Somebody who memorizes Bhagavad Gita, concentration to hai hi, you will never get Alzheimer's disease. Oh. Okay. You will never get Alzheimer's. Mm. This dementia, Alzheimer's, it's a very modern thing these days. The more you use all this GPS and all that, no, you use all these gadgets. Earlier, to find direction also, we used to ask people, left, right, where should I go? Left, acha, left, after the circle. Okay, okay. So we used to use our intelligence. Today, nothing. Truck, drive, right? So brain is becoming very weak, and the weaker the brain becomes, you'll see all these problems happen. But you will never see. That is why in the Vedic literatures, in the Vedic times, even now in ancient Gurukulas or even Gurukulas now also, the ancient practice is that small children are made to memorize verses. And the more they memorize verses, they're not taught meanings. Small children are not taught meanings of Bhagavad Gita. Only memory, memory, memory. And as they grow, because they don't have the maturity to be able to understand the meaning, right? So meaning is taught later, but memorization is done now. So I would recommend that all of us also do a little bit of practice as much as we can, that we memorize a few verses of Bhagavad Gita, important verses of Bhagavad Gita. You can take chapter 12. How many verses are there in chapter 12? 20. Madhuri, chapter 12? Yeah. 20 verses are there in that? Oh, okay. Able to recite it? Yeah, no problem, no problem. So through practice, it will come. Memory to, if I just ask you right now, which is your favorite song that you heard? Wo wala, din 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 din, whole song will come out. है ना? So very easily songs come out. We've heard all these songs. I also remember so many songs I would have heard in my childhood. I've not heard that song for 20, 30 years now. But if somebody asks me, gives me two lines, I will tell you whole song. Right? So all this our brain will work. But Bhagavad Gita doesn't work. So we have to kind of reverse that. Memory has the capacity. We'll have to, in a subconscious mind, put these verses. So you recite it every day, you'll be able to learn it. Right? So dementia-free life after that. Yeah. Yeah. We not do pranayama, just to chant the shlokas, that is getting their breathing is very easy. Yeah. Yeah. That's true. So recitation every day we must try and recite Bhagavad Gita verses. They have come from Krishna's mouth, so we practice in that way. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Sorry, I took a lot of time today. So, in the spirit of Nityananda Prabhu, please forgive me.